یہ اس دور کی کہانی ہے جب ایمان بچانا جان بچانے سے بھی مشکل تھا۔ سورہ کہف میں جس کہف یعنی گفا کا ذکر ہے وہ ہمیں کچھ ایسے نوجوانوں کی کہانی سناتی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لگ بھگ 300 سال بعد کے دور میں رہتے تھے۔ اس وقت لوگوں کے عقیدے بگڑ چکے تھے۔ ایک ظالم بادشاہ آیا جس کا نام دقیانوس تھا۔ دیکھو اس دربار کو، یہ شہر، یہ لوگ، یہ طاقت سب میری مرضی سے چلتے ہیں۔ سب لوگ اس دیوتا کے آگے جھک جاؤ۔ تم دیوتا کے آگے کیوں نہیں جھکے؟ میں صرف اللہ کے آگے جھکتا ہوں اور کسی کے آگے نہیں۔ یہ شخص ہمارے خداؤں کو سجدہ کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ اگر یہ ہمارے خداؤں کا انکار کرتا ہے تو اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ختم کر دو اسے۔ اس شہر میں صرف ہمارے دیوتاؤں کی ہی پوجا ہوگی۔ جو انکار کرے گا اس کا سر کاٹ دیا جائے گا۔ وہ اتنا ظالم تھا کہ لوگوں سے اپنے لیے سجدے کرواتا، خدائی کا دعویٰ کرتا اور بت پرستی کو زور شور سے پھیلانے لگا۔ جو کوئی اللہ کی بات کرتا یا آخرت کا ذکر کرتا اسے یا تو مار دیا جاتا یا زبردستی اس کا دین بدلوا دیا جاتا۔ تم سب نے دیکھا آج پھر ایک بے گناہ کو مار دیا گیا، صرف اس لیے کیونکہ اس نے جھوٹے خداؤں کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ اگر کل ہماری باری آ گئی تو یاد رکھنا ہم صرف ایک رب کو مانتے ہیں، آسمان اور زمین کے مالک کو۔ اسی ظالم بادشاہ کے دربار میں کچھ نوجوان تھے۔ کچھ روایتوں میں ان کی تعداد 7 بتائی گئی ہے، کچھ میں 8، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے سچائی کیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور آخرت پر یقین رکھتے تھے۔ حضور، مجھے معلوم ہے کہ محل کے کچھ خاص لوگ بھی عیسیٰ کے خدا کو ہی اپنا خدا مانتے ہیں۔ تمہیں جن پہ شک ہے ان لوگوں کو میرے سامنے پیش کرو۔ مجھے اپنا خدا مانو اور مجھے سجدہ کرو۔ کوئی خدا سوائے خالق کائنات کے اس دنیا میں وجود نہیں رکھتا۔ بھلا ہماری ہی طرح دکھنے والا ایک انسان خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اور تمہارے خداؤں کو ہم نہیں مانتے۔ ہمارا خدا تو صرف اللہ ہے۔ خاموش ہو جاؤ۔ کیا تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں؟ قید کر دو ان سب کو۔ ہمارے ارادے تم بدل نہیں سکتے۔ ہمیں اپنی جان نہیں بلکہ ہمارا ایمان پیارا ہے۔ یہاں ایمان بچانا ناممکن ہو گیا ہے۔ ہمارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ اب ہم یہ شہر چھوڑ دیں۔ جب شہر میں رہنا ممکن نہ رہا تو ان نوجوانوں نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ اپنا شہر، اپنے گھر، اپنی راحت سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ پر بھروسہ کر کے نکل پڑے۔ میں بھی ایک اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں۔ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں۔ اس کتے کو ساتھ مت لو ورنہ یہ شور مچائے گا اور ہم سب پکڑے جائیں گے۔ نہیں، یہ ایسا کچھ نہیں کرے گا بلکہ یہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمیں ظلم سے بچا۔ آمین۔ شہر سے بہت دور ایک پہاڑی گفا میں انہوں نے پناہ لی۔ جب وہ غار میں داخل ہوئے تو اللہ نے ان پر اپنی خاص حفاظت نازل کر دی اور تھک کر سو گئے۔ اور یہیں سے اللہ کی قدرت کا وہ کرشمہ شروع ہوا جسے قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے ان کے کانوں پر نیند ڈال دی، ایسی گہری نیند کہ صدیاں گزر گئیں اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ ادھر ظالم بادشاہ کو خبر ملی، اس نے ان کے پیچھے لوگ بھیجے
जाओ, उनका पीछा करो और उन सबको पकड़कर मेरे पास लाओ। पैरों के निशान गुफा तक पहुंचे, लेकिन हुजूर, वो लोग शहर के बाहर एक गार में छुपे हुए हैं। उस गार के मुंह को एक दीवार उठाकर बंद कर दो, उसी गार को उनकी कब्र बना दो। कुरान बताता है कि सूरज भी उनके लिए इस तरह से निकलता और ढलता था कि उन पर सीधी रोशनी ना पड़े, ताकि उनके जिस्म महफूज रहे। और फिर अल्लाह ने उन्हें गहरी नींद सुला दिया। इस दौरान दुनिया बदल गई, सल्तनतें खत्म हो गईं, नस्लें मिट गईं और जुल्म का दौर दफन हो गया। साल नहीं, दहाइयां नहीं, पूरे 300 साल गुजर गए। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा जगा दिया। उन्होंने आंखें खोली और आपस में पूछा, हम कितनी देर सोए? शायद आधा दिन, शायद एक रात। मुझे तो कुछ और ही लगता है। यानी सदियां उनके लिए कुछ घंटों जैसी थीं। यहाँ से हमें समझ आता है कि अल्लाह जब चाहे वक्त को समेट देता है। तो बहुत जोर से भूख लग रही है। मैं बाहर जाता हूँ और सबके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। क्या किसी के पास कोई सिक्का है? हाँ, मेरे पास है, लेकिन संभल कर जाना। दकियानूस के सिपाही तुम्हें पहचान ना लें। ये पेड़ और ये कब्रिस्तान, ये तो यहाँ पहले नहीं थे। ये कहाँ से आए? ये दरवाजा भी नहीं था। मेरी समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ एक दिन में इतना कुछ कैसे बदल सकता है। भाई, कुछ रोटियां दे दो। ये सिक्का तुम्हें कहां से मिला? क्या कोई खजाना हाथ लगा है? खजाना? कैसी बात कर रहे हो? ये मेरा ही सिक्का है। सच सच बताओ, खजाना कहाँ है, वरना मैं बादशाह को खबर कर दूंगा। गिरफ्तार कर लिए जाओगे तुम। चलो, बादशाह के पास चलो। खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह बदल चुका था, जो खुद ईमान वाला था, क्योंकि वक्त भी बदल चुका था। इस बार बादशाह बेदरूस था। हुजूर, इसके हाथ कोई पुराना खजाना लगा है, लेकिन ये बता नहीं रहा है। नहीं, ये झूठ है। जनाब, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। पता नहीं कैसे, लेकिन सब कुछ बदल गया है। अभी कल ही तो हम दकियानूस से अपना ईमान बचाने के लिए यहां से फरार हुए थे, और आज सब कुछ बदला हुआ है। लेकिन ये तुम्हारा सिक्का इस जमाने का नहीं है, बल्कि सदियों पुराना लगता है। और दकियानुस तो 300 साल पहले ही मर चुका है। तुम्हारे हिसाब से अभी कौन सी सदी चल रही है? 137 ईस्वी। नहीं, इस वक्त 437 का दौर चल रहा है। ये कैसे मुमकिन है? क्या हम 300 साल तक गार में सोते रहे? है मेरे खुदा, ये क्या माजरा है? हुजूर, शायद ये अंजेलिस गार के शहीदों में से एक हैं, जिस गार के मुंह को दकियानूस ने दीवार से बंद करवा दिया। इस तख्ती पर सबके नाम लिखे हुए हैं। मेरे खुदा, शायद खुदा ने लोगों की आंखें खोलने के लिए ये मुआवजा दिखाया है। जो लोग अपनी गुमराही की सबब कहते हैं कि कयामत के रोज भला हम कैसे अपनी कब्रों से दोबारा जिंदा उठाए जाएंगे, वो लोग आज खुद अपनी आंखों से इस मौजज़े को देख लेंगे।
तुम्हारे और साथी कहाँ हैं? वो अभी गार में ही हैं और मेरे लौटने का इंतजार कर रहे हैं। हम सब आपके साथ उस गार में जाना चाहते हैं जहां आपके साथी मौजूद हैं, ताकि उन्हें देखकर हम सब की इस्लाह हो सके। सुनो शहर वालों, एंजल इस गार के शहीद जिंदा हो गए। ये सारे लोग हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? क्या मैक्सिमिलियन पकड़े गए हैं? क्या सच में ये वही लोग हैं? कहते हैं सदियों पहले गायब हो गए थे। ये कोई मामूली बात नहीं लगती। कहा जाता था कि वो लोग सदियों पहले मर चुके थे। अगर ये सच है तो ये अल्लाह की कोई बड़ी निशानी है। जो मर चुके हों वो दोबारा कैसे लौट सकते हैं? शायद हम वो देख रहे हैं जिसे समझना आसान नहीं है। ऐ लोगों, आज अल्लाह ने तुम्हें जिंदा मिसाल दिखा दी है कि जो ये कहते थे मरने के बाद हम कैसे जिंदा उठाए जाएंगे, वो आज अपनी आंखों से देख लें। वक्त जिस पर अल्लाह काबिज है उसे न सदियां रोक सकती हैं न मौत। जब लोग गुफा पहुंचे और उन्हें जिंदा देखा तो सब अल्लाह के सामने सजदे में गिर पड़े। जनाब, हमारी मर्जी है कि आप सब हमारे साथ महल चलें। माफी चाहूंगा, पहले मैं अपने साथियों से अकेले में मशवरा करना चाहूंगा। हमने खुदा की मोहब्बत में अपने घर बार, बीवी, बच्चों को छोड़ दिया। अब उसकी मोहब्बत के सिवा जाएं भी तो कहां जाएं? तेरी रजा के लिए ही हम झूठे खुदाओं के मुकाबले में खड़े हुए, वरना दुनिया तो पहले भी हमें मयस्सर थी। फिर असहाब कहफ दोबारा गुफा में गए और अल्लाह ने उन्हें फिर सुला दिया और आज तक वो अल्लाह की हिफाजत में वहीं आराम कर रहे हैं। कुरान कहता है कि उनका कुत्ता भी चारों पांव फैलाए उनकी रखवाली में बैठा है। हदीस बताती है कि असहाबे कहफ का कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। सवाल ये है, अगर एक जानवर ईमान वालों की संगत की वजह से जन्नत पा सकता है तो अल्लाह के नेक बंदों की संगत इंसान को कहां पहुंचा सकती है। इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि ईमान पर सब्र करना कभी जाया नहीं जाता। अल्लाह के लिए छोड़ी हुई चीज अल्लाह बेहतर अता करता है। जवानी अगर ईमान के साथ हो तो पूरी कौम बदल सकती है। अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत ऐसे तरीके से करता है जो अक्ल से परे होते हैं। आज जब फितना, गुमराही और दौरे आजमाइश हर तरफ है, असहाबे कहफ हमसे सवाल करते हैं, अगर ईमान खतरे में हो तो क्या तुम अल्लाह का इंतखाब करोगे? ये था वाकया असहाबे कहफ का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट